Welcome back, everyone. I recently did a webinar or more of a session, online session, for a group on Facebook called Mommy's Care. It's an all women's group, has more than 35,000 members. And the topics were basically talking about what is Vedic astrology, how does astrology work in your life, what are mandalas, how do Vedic remedies work in your life, and how can you make changes in your life with Vedic astrology. So this session was in regular language. All my videos here on the channel are mostly in pure English, but this on on public demand, and because it's a very large group of people, I had done it in regular language. तो ऐसे आम भाषा में है ये session. It's informative. It has a lot of knowledge in it. So I thought, why should my clients be deprived of this knowledge? So I'm sharing this on my channel as well. Check it out. It's very informative. It talks about Vedic astrology, how it works, how remedies work, and how can you use Vedic astrology to make changes in your life. So check it out. A very warm welcome, everyone. A big namaskar to all of you. Firstly, I want to thank everyone who is responsible for this group, all the administrations, all the owners, all the women who are behind this wonderful initiative. You're doing a wonderful, great job of bringing women together, of putting all this in a very organized way. Even the shopping carnival has been organized really well, beautifully, professionally done. So big congratulations to all of you, and thank you so much for giving me and so many of us the opportunity to come forward and talk to all the members. I believe I am the first speaker in this upcoming shopping carnival. So a very a very good luck, lots of best wishes to all those who are going to continue talking in this shopping carnival. I wish you all the best. May Ganesha's blessing be with you, and may it be a wonderful entire month of celebration and exchange of great knowledge. So thank you so much, and all those who are watching this and the who will watch it later in the coming days, thank you so much for giving your time and coming here and watching this video. Once again, a big namaskar to all of you. Now, my name is Kanupriya Singh. I have been associated with astrology, with Vedic astrology, for more than 20 years now. I am a professional Vedic astrologer. I go under the name Astro Kanu. So you can check it out. You can Google it. Just write hashtag Astro Kanu or just write Astro Kanu. I am present on YouTube. My YouTube channel is very informative. It has a lot of videos on meditation, about spiritual knowledge, about astrology, and there are monthly free predictions and guidance that can help you. I upload a lot of mantras on it for those of you who are interested in mantra chanting. For this video, I will like to speak in regular language. So मैं सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में बात नहीं करूंगी, मैं आम भाषा में बात करूंगी. Usually my videos are in English, but for everyone's convenience and comfort, today's video is going to be in regular language. जो हम आम दिन में जो भाषा यूज करते हैं, ना तो वो प्योर हिंदी होती है, शुद्ध हिंदी होती है, ना वो completely फॉर्मल इंग्लिश होती है. तो मैं कोशिश करूंगी कि ये कॉन्वर्सेशन मेरी आज एक आम भाषा में रहे, ताकि सब लोग समझ सकें और कंफर्टेबल रहें लैंग्वेज के साथ. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आज का टॉपिक डिस्क्लोज करती हूँ. मैं आज अपने टॉक में 3 टॉपिक्स कवर करूंगी. व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एक्चुअली है क्या? आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत लोग हैं, पत्री देखते हैं, प्रेडिक्शंस देते हैं. देयर आर सो मेनी वीडियोस, देयर आर सो मेनी पीपल, बट हाउ डज इट वर्क? एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष जो है, वो काम कैसे करती है, वो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे करती है, ये आप लोग क्या जानते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है जो प्लैनेट्स वो तो है स्काई में है, हाउ इज इट कनेक्टेड टू योर लाइफ? सो मेरा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एक्चुअली है क्या. मेरा दूसरा टॉपिक होगा मंडलास एंड वैदिक रेमेडीज. जो मंडलास हैं या यंत्र हैं, जो मंडल हैं, यंत्र हैं,
वो एग्जैक्टली है क्या, जो हम उपाय करते हैं, कितने लोग हैं जो तरह तरह के उपाय इंटरनेट पे खरीदते रहते हैं। आई एम श्योर आप भी खरीदते रहते होंगे। आप लोग बहुत कुछ खरीदते हो, आप मालाएं खरीदते हो, आप तरह तरह के वास्तु के उपाय खरीदते हो, पर क्या है ये सब, कैसे काम करता है ये? So second topic will be that, and my last and third topic will be how do you change your life with these remedies and with astrology. मतलब astrology और इन उपायों से आप अपनी लाइफ क्या एक्चुअल में बदल सकते हैं, और अगर बदल सकते हैं तो वो कैसे होता है एग्जैक्टली। सो बजाय मैं यहाँ आके आपको बोलूं कि मेरा काम बहुत अच्छा है और मेरे साथ आप रीडिंग्स लें, वो ऑलरेडी मुझे पता है, मेरा काम अच्छा ही है, अच्छा ही चल रहा है। आप मेरे को फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, सर्च फॉर एस्ट्रो कानू, तो आपको मेरा फेसबुक पेज दिख जाएगा, मेरे 5 स्टार रिव्यू रेटिंग्स हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा काम और मेरे क्लाइंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट देते हैं मेरे काम को। मुझे लगा कि यहाँ के ये इन टॉपिक्स के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, ताकि आप मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत इन्फॉर्मेशन और गलत अंडरस्टैंडिंग है, इस सब्जेक्ट को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर कर सके, एंड फ्यूचर के लिए आपको पता हो कि आप जो कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस कर रहे हैं, रेमेडीज दैट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग. So my aim is to enlighten you and share knowledge today. And I have been told that I have 1 hour to talk, so we will move fast ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं. मैं अपने सब लेक्चर्स अपने गुरु को याद करके ही शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हमारे गुरुओं के नॉलेज के बिना शायद हम कुछ भी नहीं कर पाए लाइफ में. सो एज ऑलवेज बिफोर आई स्टार्ट, I would like to thank my Jyotish gurus and my spiritual gurus, and I'm very grateful for the knowledge that they have shared with me. So पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, what is Vedic astrology? So एस्ट्रोलॉजी में आप सब जानते हैं नवग्रह करके एक चीज होती है, एंड आई एम श्योर आपने अपनी लाइफ में सुना ही होगा नवग्रह क्या है एक्चुअली. नवग्रह जो हैं बेसिकली 5 वो प्लैनेट्स हैं, 5 ग्रह हैं. कौन से हैं? मार्स, जुपिटर, मर्क्यूरी, सैटर्न एंड वीनस. सो मंगल, गुरु या बृहस्पति, शुक्र, शनि एंड बुध, ये हमारे हिंदी के नाम हो गए. तो ये 5 जो है ग्रह हैं. और उसके बाद 2 ल्यूमिनरीज. ल्यूमिनरीज मतलब वो जो हमें रोशनी देते हैं, जो क्या है? सन एंड मून, द 2 ल्यूमिनरीज, सूर्य एंड चंद्रमा. एंड फिर 2 नोड्स हैं. नोड्स क्या हैं? जो जब सूर्य चंद्र, द सन एंड द मून व्हेन दे रोटेट, आपस में जब वो रोटेशंस चलती रहती हैं, मून और मून अर्थ के आसपास रोटेट करता है, सन के बीच में, उससे क्लिप्सेस होते हैं, दिन रात बनते हैं. एस्ट्रोनॉमी है, राइट साहब, एस्ट्रोनॉमी की कैलकुलेशंस है ये. So these shadows that get formed, that cause eclipses, जिनसे ग्रहण होते हैं चंद्र और सूर्य, वो राहु और केतु के नाम से मानी गई है. So राहु एंड केतु are basically the 2 shadows created between the moon and the earth. Okay, so इन 9 चीजों को मिला के 5 planets, 2 luminaries और 2 राहु केतु, the shadow planets or the nodes of the moon comprise as what is called the नवग्रह. ये हमारे एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिस है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, कहाँ से शुरू हुई? Vedic, when you say Vedic, what does it mean? So Vedic is basically our Vedic scriptures, जो हमारे वेद पुराण है, उनमें एस्ट्रोलॉजी का जिक्र है. उसमें एस्ट्रोलॉजी की बहुत नॉलेज दी गई है. एक ऋषि ने दूसरे ऋषि को ये ज्ञान बोल के बताया, उन्होंने लिखा और उन्होंने अगली जनरेशन को बताया. इस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत सारे ऋषि मुनियों का ज्ञान मिला के एक जो सब्जेक्ट, जिसको संहिता कहते हैं, जिसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ नॉलेज, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट है. ओरिजिनली ये सब संस्कृत में है और हमको पढ़ने के लिए संस्कृत सीखना जरूरी था. हमने संस्कृत में श्लोक पढ़ पढ़ के अंडरस्टैंडिंग ली है, और ऐसे ओरिजिनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई पता नहीं कितने हजार साल पहले. और हमारी लाइफ से हाउ डज इट कनेक्ट?
हम जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, प्लैनेट्स अपना मूवमेंट कर रहे हैं, हर मिनट मिनट में, हर सेकंड सेकंड में our earth is revolving, the planets are moving, everything in the cosmos is rotating in a formation. How does it connect to your life? लोग कहते हैं ना कि अरे शनि का टाइम चल रहा है, राहु का टाइम चल रहा है, आपकी लाइफ में वो टाइम कैसे अफेक्ट करता है, ये कभी सोचा है आपने? So I thought that I must give a little bit of time and explain this first. So coming to us, what are you? What exactly are you? You are a composition of your body, your intelligence or your mind, and what else? बॉडी तो फिर भी रहती है जब लोग मर जाते हैं, तो इसका मतलब कुछ और भी होगा जो हमारे अंदर है, जो बॉडी के बियॉन्ड है, which is the energy that lives inside the body, which we call soul or the Atman. So हम क्या है? हम जीवात्मा है जो एक शरीर में रहती है, और जब ये जीवात्मा नहीं रहती तो शरीर अकेला रह जाता है, और उसको हम बोलते हैं the person has died or death has occurred. So this body and this soul is living a life on earth. आपने यहाँ जन्म लिया है, आप पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक पर, इस बॉडी के अंदर एक मनुष्य की योनि में आप अपने जीवन को प्रचारित कर रहे हैं. Now, how does this connect to Rahu, Ketu, Saturn, Jupiter? What is the connection? So the connection is this. Everything in your body, जो entire आपका जो शरीर है, वो 5 elements से बना हुआ है. What are the 5 elements? It's earth, fire, water, space, and air. These are the 5 elements in your body. ये जो elements हैं, ये यूनिवर्स में भी है. Entire universe is made of these 5 elements only. Correct? So इसका मतलब जिस चीज से कॉस्मोस बना है, उसी चीज से आपकी बॉडी भी बनी है. उसके बाद क्या चीज है जो आप इन 5 एलिमेंट्स को जिंदा रखती है? ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ये जो हम सांस लेते हैं अंदर बाहर, ये प्राण है. वी आर टेकिंग इन लाइफ फोर्स एंड वी आर ब्रीदिंग आउट. जिस वजह से वी आर अलाइव. If we stop breathing, we'll die. This life force is cosmic energy which is around us. सब जीवात्मा सांस लेते हैं, इसलिए वो जिंदा है, including पौधे, including जानवर. Everything that is alive has to breathe, which means the entire cosmos is connected with 5 elements and universal energy. Now, these 5 elements are the very 5 planets. So the 5 elements are embodied in these 5 planets. जो आपके ये 5 elements हैं, ये ही 5 planets के तौर पर है. वो किस तरीके से? Saturn, that is शनि, is air, वायु. Mars, that is मंगल, is fire, अग्नि. Venus, that is शुक्र, is जल तत्व, water. Mercury, that is बुध, is पृथ्वी तत्व, which is earth element. And Jupiter, that is space, Brihaspati is जो space है, जो आकाश तत्व है. So ये planets, ये 5 तत्व, 5 planets हैं, और ये तत्व हमारी बॉडी और पूरे यूनिवर्स में है. और इस हिसाब से ही इन प्लैनेट्स का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा है. एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. A lot of people, you will see, पूरी लाइफ they have issues with acidity. You will forever hear them crib, अरे बहुत एसिडिटी हो रही है, हमको बचपन से एसिडिटी का प्रॉब्लम है. You know, I have issues with digestion. So all their life they struggle with issues connected to stomach, digestion. उनका जो खाना पचाने की शक्ति है, उससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स रहती हैं. खाना किस चीज से पचता है? What element is used to digest food? It's the fire element in the body, right? Now, at the time of birth, जो एग्जैक्ट आपका जन्म का टाइम है, उस समय पे अगर मंगल ग्रह एक ऐसी पोजीशन पे था जो फेवरेबल नहीं थी, जो अग्नि तत्व था, the fire element was disturbed, then all your life you will have struggle with issues connected to Mars. तो आपका अग्नि तत्व से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, डाइजेशन है, आपका गुस्से का टेम्परामेंट है, आपके और क्या कनेक्टेड होता है अग्नि तत्व से?
प्रोजेनी, चिल्ड्रन का बर्थ, आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ये सब आपकी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाएंगे. दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी कम्स सो क्लोज टू योर बॉडी, सो क्लोज टू योर लाइफ, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स योर लाइफ. ये इतना एक पास का नजदीकी रिश्ता है ग्रहों के और हमारे शरीर और हमारी जिंदगी के बीच. इस स्टडी को, जो ये कनेक्शन को स्टडी करती है, उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं. सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन एंड स्टडी ऑफ द movements and placement of these planets and how they affect your body and your life. That is Vedic astrology. So I hope this is a little clear. आपको कुछ clarity है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है. मेरे YouTube चैनल पर डिटेल लेक्चर्स हैं. मैंने कॉस्मिक एनर्जी के बारे में बात करी है. मैंने बात करी है अबाउट द चक्रास इन अ बॉडी, कैसे हमारे थिंकिंग, हमारे एनर्जी और हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ी है. ऐसी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है. आप YouTube पे जाके सिर्फ डालें एस्ट्रो कन्नू, स्पेलिंग नीचे है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाएं. उसके बाद प्लेलिस्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम पे प्लेलिस्ट है, उसमें से आप लेक्चर देख सकते हैं. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो लोगों को बहुत यूजफुल लगी है. सो डू गो टू यूट्यूब, check out my channel which is Astro Kannu, and check the various topics that will be very useful to you, and I'm very sure about it. So the next topic to cover it, ये आपने मैंने एक्सप्लेन करा आपको कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट यू. सेकेंड टॉपिक इज मंडला एंड वैदिक रेमेडीज. जो हम उपाय करते हैं उसमें मैं मंडल्स के साथ भी काम करती हूँ. मंडल इज अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक डिजाइन. मंडला, मंडल दोनों संस्कृत नाम मंडल है और वैसे आमतौर पे हम उसको मंडला कह देते हैं. सो हाउ डज दैट वर्क, हाउ डू वैदिक रेमेडीज वर्क, उपाय वगैरह कैसे काम करते हैं, ये मेरा सेकेंड टॉपिक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा that these planets are basically nothing but the 5 elements. जो पंच तत्व आपकी जिंदगी में है वो ये ग्रह हैं. और जिस समय आपका बर्थ होता है, क्योंकि वो आपकी इस जीवन की बिगिनिंग है, वो एक तरह से आपका फॉर्मेशन टाइम है, वो आपका शुरुआत है. इट्स द बिगिनिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस लाइफ. सो विच बिकम्स the point to study, which is the time of birth, becomes very crucial. Now, इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि टाइम ऑफ बर्थ है क्या. हम जब हमारी मदर हमें कंसीव करती है और जब वो प्रेग्नेंट होती है हमसे, तो हमारी जीवात्मा आके उनमें रहती है, तो क्या वो टाइम ऑफ बर्थ है. जब बच्चे को हम जन्म देते हैं, बच्चा इस दुनिया में बाहर आता है, क्या वो टाइम ऑफ बर्थ है. इसमें बहुत सारे लोगों के अलग ओपिनियंस हो सकते हैं. जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, in my opinion, time of birth is that moment when the umbilical cord of the baby is snapped, and in that moment when the baby takes its first independent breath. जब माँ के शरीर से अलग की जाती है umbilical cord, और जो बेबी अलग, मदर की बॉडी से अलग जो पहला सांस लेता है, क्योंकि उस मोमेंट में वो बच्चा एक्चुअल में अपने यहाँ बिना मदर से कनेक्टेड हुए जीवित हो चुका है. तो जो वो पहली सांस है, जो कॉर्ड कटिंग का टाइम है, वो ज्योतिष के लिए एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ होता है. बहुत कम लोगों के पास ये टाइम ऑफ बर्थ नोटेड होता है. इसलिए जब मैं एस्ट्रोलॉजी का सेशन लेती हूँ एंड आई सिट डाउन टू रीड अ बर्थ चार्ट, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि पत्रिका exact time of birth है कि नहीं. I spend 10 minutes in doing birth time rectification. This is a term used for correcting this exact moment. तो मैं चेक करती हूँ कि जो आप टाइम मुझे दे रहे हैं वो प्रिसाइज है कि नहीं. There is a way of doing it in astrology. There are calculations to be done. तो मैं उसको करेक्ट टाइम पे पहुंच के उसके बाद में अपनी प्रिडिक्शंस देना शुरू करती हूँ. तो अगर आपके पास अप्रोक्सीमेट टाइम है या आप कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं रीडिंग के लिए, सो मेक श्योर कि उनको वो टाइम करेक्शन देखकर उसके बाद पत्रिका पढ़ना शुरू करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल एंड इट हेल्प्स यू गेट करेक्ट प्रेडिक्शंस. सो वैदिक रेमेडीज, कमिंग बैक टू दैट, जब जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग तत्व और एलिमेंट की एनर्जी हमारी लाइफ में कैरी करते हैं.
हर एक प्लैनेट की, हर एक तत्व की एक अलग एनर्जी है। लाइक आई एक्सप्लेन, जो कि अगर मंगल है तो वो फायर एलिमेंट हमारी लाइफ में डिस्टर्ब कर सकता है, या अग्नि तत्व हमारी लाइफ में डिस्टर्ब कर सकता है। सिमिलरली बाकी के प्लैनेट्स भी हैं। आपका सन और मून है। सन और मून क्या करते हैं? सो सन इज एक्चुअली सपोज टू बी सिंबॉलिक ऑफ द फादर, आपके पिता। मून इज सिंबॉलिक ऑफ योर मदर, आपकी माता। उसके सिवाय सन इज ऑल्सो द सोल एंड द यूनिवर्सल सोल, परमात्मा और आत्मा का संबंध जो सूर्य है पृथ्वी में वो दिखाता है। और चंद्रमा, द मून, आपकी थिंकिंग, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, ये दिखाता है। सो इसका मतलब पत्रिका में आप देख सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल की हेल्थ कैसी होगी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, फिजिकल प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, उनकी लाइफ में मेंटल जर्नी कैसी रहेगी। सो मेंटल जर्नी और फिजिकल जर्नी इसका मतलब थोड़ी अलग है। ये कभी सोचा है आपने? Ever given it a thought that your mental journey is not the same as your physical journey? A very simple example: famous film star Deepika Padukone. She had all the success, very successful, money, life, fame. So many people want her life, right? All the looks, all the fame in the world. And she came out with her story that she went through depression. तो उनकी लाइफ में तो सब अच्छा जा रहा था, पर उनकी मेंटल जर्नी कैसी थी? मेंटली उनकी जो मानसिक जर्नी थी वो बहुत दुखी थी। शी अंडरवेंट डिप्रेशन, बहुत एक लो टाइम से वो गुजरी। सो इसका मतलब फिजिकल जर्नी जो थी सक्सेस ऑफ कंफर्ट्स वाली वो चल रही है, पर साथ साथ जो मेंटल जर्नी है वो उनकी खराब चल रही थी। विच मीन्स हमको लाइफ में अपनी मेंटल जर्नी को पढ़ना भी जरूरी है। एंड एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि आपकी मेंटल जर्नी कैसे चल रही है। सो अगर आपके पास अगर आप एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जिसमें आप बहुत डिस्टर्ब हैं, यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली, यू आर मेंटली डिस्टर्ब फॉर नो रीजन, सो एस्ट्रोलॉजी विल गाइड यू कि आप अपनी मेंटल डिस्टर्बेंसेस को कैसे ठीक कर सकते हो। फॉर दिस समटाइम्स मंडलास आर वेरी पावरफुल। मंडला जो है और जो यंत्र है काफी सिमिलर होते हैं। यंत्र एक फिक्स डिजाइन है, इसी के ऊपर मंडला बेस्ड है, पर मंडला में थोड़ी आर्ट फॉर्म, अलग अलग रंग, कुछ एडिशन आर्ट्स ये जोड़ी जाती है। अब द एनर्जी इन द चार्ट, जो एक शक्ति आपकी पृथ्वी में है प्लैनेट्स के थ्रू, सूर्य के, चंद्रमा के थ्रू, उसमें जो इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करने के लिए हम मंडला को यूज करते हैं। मैं पिछले 1.25 साल से मंडलास के साथ काम कर रही हूँ। मेरी अपनी खुद की लाइफ में भी एक बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। मैं बाय चांस एक हॉलिडे के लिए नेपाल गई थी, और वहां पे आई केम अक्रॉस अ मंडला आर्टिस्ट जो कि एक लामा है, देवी भक्त है, बहुत चांटिंग करते हैं और स्पिरिचुअल है, एकदम सादे हैं, और पेंटिंग करते हैं ब्यूटीफुल मंडलास की। और उनसे जब हम बातचीत करने लगे, आई स्टार्टेड डिस्कसिंग, और मुझे ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा नहीं, पर मुझे यंत्र की नॉलेज है, तो मैं उनसे बात करने लगे कि हाँ ये पता है इस देवी का होता है। तो उन्होंने कहा अरे मैं भी देवी पुजारी हूँ, आप भी। तो ऐसे ऐसे बात करने में उन्होंने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, आप क्यों नहीं मेरे साथ कोलैबोरेट करते, लेट्स वर्क टुगेदर। I will send you the mandalas that you want. I'll paint for you, specially hand painted, the way you want them done, and you can help people with this. So I said, by chance, I believe that it was destiny, or my Devi wanted it to be like that, because I don't believe they are coincidences. I believe it's all planned by the universe. And I'm grateful that I got this chance to work with the mandalas. और तब से मैं मंडलास के साथ काम कर रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, मैं अपने घर में लाई हूँ और मैंने लगाए हैं अपने घर पे। और उसके बाद से बहुत से क्लाइंट्स ने मुझसे मंडलास लिए हैं, and for everyone it has worked magically. Sometimes the result is instant, एकदम से चेंजेस आते हैं कभी कभी। Sometimes the result takes 8 to 10 months, करीब करीब साल भी लग सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी लाइफ जर्नी में आपके अपने जो कार्मिक डेट्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो स्पीड जो आपकी लाइफ में जिस स्पीड से चेंज आएगा वो वेरी कर सकता है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक, बट पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे, ये चीज की मेरे पास गारंटी है। मैंने खुद पर्सनली, मेरी फैमिली, वी हैव यूज्ड इट, वी हैव ट्राइड इट, एंड आई हैव ग्रेट रिव्यूज फ्रॉम माय क्लाइंट्स। आप रिव्यूज और रिकमेंडेशंस मेरे फेसबुक के एस्ट्रो कन्नू के पेज के रिव्यू सेक्शन में देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस भी हैं और कुछ रिव्यूज भी हैं जहां लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं।
So mandalas is a very powerful way to bring positive energy in your life and to create the changes. Now this brings me to the last topic कि जो Vedic remedies हैं वो क्या हैं and how to create a change in your life. Vedic remedies या उपाय से हम अपनी लाइफ में चेंज कैसे ला सकते हैं और ये हैं क्या. So now I'll explain that. So firstly, what are remedies? उपाय हैं क्या exactly? अगर आपकी लाइफ में एक जर्नी चल रही है, सपोज आप थोड़े बुरे टाइम से गुजर रहे हैं या मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, क्या आप उसको बदल सकते हैं? और ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? कई बार लोग कहते हैं मेरे ही साथ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसका एक बहुत सिंपल आंसर है. आपने सुना होगा पास्ट लाइफ के बारे में. पहले बहुत सारे लोग अक्रॉस द वर्ल्ड यूज्ड टू चैलेंज कि नहीं नहीं पास्ट लाइफ तो होती नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली हिंदूज मानते हैं. बट ओवर द इयर्स अगर आप गूगल करें साइंटिफिक रिसर्च ऑन पास्ट लाइफ, आप ढूंढ सकते हैं, इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन है. There have been so many experiments. There has been so much of research. There have been cases who have come back, who have remembered their past life. They've gone to those houses and identity was confirmed कि हाँ पिछले जन्म में ये जना यही था, हाँ हमारे घर में ऐसा एक बेटा था. बहुत से केस आपको मिल जाएंगे, आप गूगल सर्च कर सकते हो, जाके गूगल पे बस सर्च करें. So now after so much of study and after so much of research, it is an acknowledged fact. ये तत्व माना गया है कि पुनः जन्म है. That past life exists. बहुत से लोग हैं जो past life regression therapy में काम करते हैं. वो qualified psychologists हैं जो आपको अपनी पुरानी लाइफ याद दिला सकते हैं सिर्फ तब जब आपकी इस लाइफ में बहुत ट्रॉमा है और आप उससे डील नहीं कर पा रहे. हर एक को नहीं पता करना चाहिए क्योंकि हर एक के बस का नहीं है. पहले आप इस लाइफ का तो कर लो, पुराना लाइफ का क्यों आप लाना चाहते हो backdated accumulated stuff. But sometimes it can be helpful, which is why some people are recommended to go through it. So आपका जो ये established fact है कि past life थी, इससे पहले आप कुछ और थे और इसके बाद भी आप कुछ और होने वाले हो, तो ये आपकी लाइफ जो है ना वो खाली इंटरिम लाइफ है. एक जर्नी चली आ रही है, उसके बीच का मूवमेंट आपकी ये वाली लाइफ है. और हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं ना उसमें. हम बैठ के फालतू की चीजें देखते रहते हैं, फालतू के झगड़े पकड़ के बैठते हैं. Every day we waste so much of time, whereas there is no guarantee how long we are going to live. No one knows. Tomorrow you might be dead tomorrow and this time is over. Everything that you got so much. You were a human being, you had money, knowledge थी आपके पास, resources थे, आप इतना कुछ पृथ्वी पे आगे आए थे, थोड़े टाइम के लिए आए थे ना, कुछ कर सकते थे, पर आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया. तो आज से मत करें टाइम वेस्ट, आज से अपना नॉलेज बढ़ाएं और पॉजिटिवली जिएं. That is also a lesson I'd like everyone to think over and start inculcating in their life कि आज से हम सोचें कि हम अच्छा टाइम बिताएंगे क्योंकि ये टाइम अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड टाइम है. थोड़े टाइम के लिए हम हैं यहाँ. हम किसी के घर जाते हैं जब, सो वी से ना अरे 10 दिन के लिए आए, चलो मैक्सिमम मजा करके जाए, छुट्टी है 10 दिन की. सो सिमिलरली हम भी यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए अर्थ पे आए हैं. अर्थ का मजा लें, यहाँ घूमें फिरें, जो कर सकते हैं करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव द चॉइस टू इवॉल्व एंड डू सो मच गुड. सो डू ऑल ऑफ दैट इन योर लाइफ, डोंट वेस्ट ऑल योर लाइफ. कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो जब पास्ट लाइफ है हमारी, सो हमने जो पास्ट लाइफ में किया हमें तो नहीं याद, राइट? यू डोंट हैव द मेमोरी व्हाट यू डिड. It's possible that you have created chaos in the past life, that you've hurt people, you've cheated people, you might have been bad to some people. Correct? आपके past life के जो experiences थे, जो पुनर्जन्म में आपके जो कर्मा करे हैं, आपको तो नहीं याद है. हो सकता है आपने जो कर्म करे हो वो अच्छे ना हो. So अब आपने कोई चीज करी, उसके बाद आप तो आगे बढ़ गए, पर जो हमारा एनवायरमेंट है ना, कॉस्मोस जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड, वो वहां पे ना नोट हो जाती है हर चीज. एवरीथिंग इज अ सिस्टम. सो इफ यू नोटिस, आप ये देखो कॉस्मोस देखो, आप जो हमारा जो ब्रह्मांड है वो देखो क्या हो रहा है उसमें.
अर्थ है, सारे प्लैनेट्स हैं, आपकी गैलेक्सी है, सब कुछ चल रहा है, आपको फील नहीं होता, बट इन एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, एवरी माइन्यूट सेकेंड सब कुछ मूवमेंट में है. अर्थ इज स्पिनिंग, मून इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग, ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग, सब कुछ चल रहा है. रैंडम तो नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं है जहां मर्जी उठ के चले जाते हैं प्लैनेट्स, एक प्रॉपर डिफाइंड पाथ पे चल रहा है. which means there's an unprecedented order in the universe that exists. हर एक चीज एक अपने तरीके से चल रही है, जो एक बंधी हुई सब चीजों का एक तरीका है चलने का, डिसिप्लिन में है सब कुछ, अपने रास्ते से बद्ध है सब कुछ, अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं. So there is an order that exists in the universe, there's a discipline that exists in the universe. You cannot, the day and night and the seasons, everything is organized, everything is fixed. So if this universe is so organized, इतना ज्यादा सब कुछ अगर सिस्टम से चल रहा है, तो obviously आप भी सिस्टम में ही हो ना, आप सिस्टम से बाहर तो नहीं हो सकते. You are part of this universe, which means you are also disciplined, whether you like it, whether you don't like it, you are disciplined. आप अपनी लाइफ में कितनी प्लानिंग करते हो, सब कुछ चलता है आपके हिसाब से. Is your life exactly how you plan it to be? Though you can be extremely organized, last minute अचानक कुछ भी होता है, changes happen, right? So there is something beyond us that is controlling the events. Sometimes a lot more and sometimes a lot less, but there is something beyond us. This something that is beyond us is called the universal order. ये जो हमारी शक्ति के बाहर जो चीज ब्रह्मांड में चल रही है, इसको हम बोलते हैं एक कार्मिक पैटर्न, जो सब कुछ एक ऑर्डर में चल रहा है, यूनिवर्सल ऑर्डर में चल रहा है. Which means what we do, every action that we take, we are creating something over there, and the result of it is bound to come back to us. आपको पता है there's a law that whatever you reflect, the effect of it will come back. आप जो चीज दोगे उसका इफेक्ट धीरे धीरे आप तक वापस आएगा. दिस इज द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ कर्मा. जो कर्म कांड है वो इसी के ऊपर स्थापित है कि जो हम करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, उसी के हिसाब से हमारा रिजल्ट होता है. इसको आप बदल नहीं सकते. Which means in our life, जब आप कहते हो ना पता नहीं क्यों हमारे साथ हो रहा है, well, आपके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपके कर्म में आया है, और उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है जना? भगवान नहीं है. आप बोलते हो कि अरे भगवान ने ये सब किया है, किसी और ने करा. कोई नहीं कर रहा है, ये आप ही का कर्म है जो आप ही जी रहे हो. सो द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर लाइफ इज यू. जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेवार हैं आप. सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, that everything that is around me, that is happening in my life, is caused by me. My karma is also caused by me. With this understanding, when you move forward, the next point to understand is, जो मैंने करा सो करा, अभी जो हो रहा है सो हो रहा है. How can I make a change in this? And can I make a change? क्या मैं इसको बदल सकती हूँ? क्या मैं इसको बदल सकता हूँ? So उसमें ये होता है, दो तरह के कर्म होते हैं. एक को हम बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, which is fixed कर्म. उसको आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो एक हिसाब किताब ऐसा है जो कि लिख दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, आपने पिछली लाइफ में एक जने के साथ एक अपना इंटरैक्शन, एक रिलेशनशिप बनाया, कुछ भी हो सकता था, बेटा, भाई, हस्बैंड, एनीथिंग, कॉलीग, एनीथिंग. आपने 10 साल उस जने को बहुत ज्यादा पीड़ा थी, बहुत टॉर्चर करा, या आपने 10 साल उस जने को ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार, केयरिंग दिया. Now you have a very strong connect with that person. So in all likelihood, this life you will again meet the person, क्योंकि आपका खाते में, अकाउंट्स में गिव एंड टेक लिखा हुआ है पहले से. तो इस लाइफ में हो सकता है वो आपके हस्बैंड, बेटा, बेटी, भाई, बहन कुछ ऐसा बनेंगे कि अब वो आपको वो दुख या सुख लौटाएंगे. उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. सो मैरिजेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड कर्मा, बहुत मुश्किल है अवॉइड करना. कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत इंटेंस हो, आज के जमाने में वो मैरिज के इक्विवेलेंट ही हो जाता है, और शादी के बजाय एक बहुत इंटेंस रिलेशनशिप में आपका गिव एंड टेक होके दैट गेट्स ओवर, which is possible in today's world where people have relationships outside marriages.
But point being that the person that you have a very intense connection with is going to come back to your life. So ये जो intense relationships होते हैं, it's fixed karma. इसको avoid करना मुश्किल है. सेकेंड पार्ट ऑफ कर्मा इज द शॉर्टर कर्मास, जिसको आप थोड़ा बहुत बदल सकते हो. अगर आपने बहुत सारी नेगेटिव चीजें करी हैं और उसकी वजह से आप सफर कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल सफरिंग है, मेंटल सफरिंग है, किसी भी चीज की सफरिंग है, फाइनेंशियल सफरिंग है, सो आप अब मेहनत करके आप यूनिवर्स को बोलो आई एम सॉरी, मैं बदल गई, मैं इसमें अब बहुत अच्छा करूंगी, मैं लोगों का भला करूंगी, मैं लोगों की मदद करूंगी, मैं अपने दिल में लव एंड कंपैशन लाऊंगी फॉर एवरीवन, and I will change that negative things that I have done into positive things. And when you do this, when you make this change, your life will start changing. So this is the way where you can change your current suffering. Where does the change have to start? It has to start here. लोग बोलते हैं अरे हमने तो सब कर लिया पर चेंज नहीं हो रहा कुछ. इधर से तो चेंज करो. Change the way you think. Change the way you feel. If you're all the time every day feeling anger, कैसे खुशी आएगी लाइफ में? First let go the anger. First start feeling peace inside, and then outside things will start changing. So to bring changes in your life, the change has to start within. खाली उपाय फिजिकली करने से नहीं होता है, उपाय को दिल से करना होता है, अच्छी फीलिंग से करना होता है. हम जो मैं जो रेमेडीज देती हूँ वो वैदिक रेमेडीज है. सो बेसिकली दे आर बेस्ड अराउंड सोशल वर्क. बहुत सारी मेरी उपायों में मैं गरीबों की सेवा करना, किसी बीमार की सेवा करना, अन्नदान करना, अपने आप को बदलना, अपना गुस्सा बदलना, बैठ के घंटों मंत्र जाप करके अपने एनर्जीज और अपनी थिंकिंग को बदलना, मैं इस टाइप की उपाय देती हूँ जिससे हम जेन्युइनली अपने अंदर अपनी फीलिंग्स, अपने कैरेक्टर और उसके बाद अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके. एंड दिस इज हाउ दे वर्क एंड दे ऑलवेज वर्क. अगेन यू कैन चेक रेमेडीज के बारे में भी रिव्यूज हैं, मेरे रिकमेंडेशंस है मेरे पेज पर. लोगों ने कहा है कि उनके लाइफ में बहुत चेंज आया है ये उपाय करने से. बट एज आई सजेस्ट कि उपाय करने से सिर्फ फिजिकली नहीं होता है. You have to make a genuine effort to bring in the change. If you change, then your life will change. So ऐसे उपाय काम करते हैं and इस तरीके से हम अपनी लाइफ में changes ला सकते हैं. मेरे YouTube चैनल पर एक छोटा सा वीडियो है that talks about how do Vedic remedies work. You can check that out. और उसके सिवाय मेरे पास lectures हैं on chanting, on meditation. सो प्लीज यूट्यूब पे जाकर एस्ट्रो कर्नू चेक करें. आपको ये सारा नॉलेज मिलेगा. इट्स फ्री ऑफ चार्ज. आई एम नॉट चार्जिंग यू फॉर इट. पर आप देखें, जाके समझें, बहुत उसमें आपको फायदा होगा. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन जब मैं बात करना चाहती हूँ कि मेडिटेशन और चैंटिंग क्या है. सो जब मैं वैदिक रेमेडीज देती हूँ या जब मैं लोगों को कहती हूँ कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, कैसे आएंगे चेंजेस, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है mantra chanting and meditation. So just briefly to explain कि actual में mantra chanting क्या है और meditation क्या है. आजकल इतने सारे apps हैं, YouTube पे करोड़ों videos हैं, lectures हैं, इतने लोग बात कर रहे हैं, इतनी तरह की meditations हैं और इतने तरह की chanting है. तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज आपके लिए बनी है, ये तो समझना बड़ा ही मुश्किल है. So I thought I'll give you small clarity about that also. Now, what is meditation? मेरे हिसाब से एक बहुत पावरफुल वैदिक रेमेडी जो मैं लोगों को रेकमेंड बहुत करती हूँ is meditation. पर एक्चुअल में है क्या? So there's a detailed lecture on my YouTube that you can check out. पर फिर भी मैं शॉर्ट में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगी आपको भी. मेडिटेशन का एक्चुअल जो ओरिजिन है वो ऑफ कोर्स वैदिक नॉलेज से हुआ है. तो द ओरिजिनल ऑथेंटिक टर्म मेडिटेशन तो इंग्लिश वर्ड है. एक्चुअल वर्ड इज ध्यान. द ओरिजिनल वर्ड फॉर मेडिटेशन इज ध्यान. ध्यान का मीनिंग क्या है? ध्यान इज, अगर इंग्लिश वर्ड देखे ध्यान का, इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्टेम्पलेशन और फोकस. सो जब आप सारी दुनिया से ध्यान को खींचकर अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे, सिर्फ अपने ऊपर ले आते हैं, सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन,
दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। इतना सिंपल है, आजकल बहुत कुछ चला जा रहा है, उस सब में ना पड़े। मेडिटेशन बहुत सिंपल टेक्निक है। आप जब आपको टाइम कन्वीनियंट हो बैठ जाएं, ईस्ट फेसिंग बैठ जाएं। डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इज अनदर वास्ट टॉपिक जिसके बारे में मैं आज नहीं बात कर पाऊंगी, पर ईस्ट फेसिंग बैठे। ईस्ट से सूर्य उदय होता है, हर डायरेक्शन की अलग एनर्जी होती है, इसलिए डायरेक्शंस एग्जिस्ट भी करती हैं। तो ईस्ट फेसिंग कभी भी बैठ जाएं, सुबह बैठ जाएं, शाम को बैठ जाएं, दोपहर में, जो आपको कन्वीनियंट टाइम हो। खाना खाने के थोड़ा टाइम बाद बैठे, वरना आप सो जाएंगे। इफ यू ईट अ फुल मील and you start meditating, you're bound to go to sleep. So not the right time. So a time where you have, eaten about 2 hours, 1 hour ago, 1-1.5 घंटा खाने के बाद, आपको अगर बैठने में प्रॉब्लम है, लाई डाउन स्ट्रेट, सीधा एकदम लेट जाए, स्पाइन सीधी करके बेड पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिटेशन शुरू करने के लिए ऑलवेज फोकस ऑन योर ब्रेथ। धीरे धीरे आप अंदर बाहर सांस लेंगे। आप नोटिस करेंगे कि हम पूरे दिन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं आसपास में कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारी सांसें सारे टाइम चल रही हैं। इतने इन्वॉल्व हैं हम कि हमें अपनी बॉडी की मूवमेंट भूल गई है। सो वेरी सिंपल टेक्निक टू disconnect from the outside and bring your focus back to yourself is observe your breath. See how you're pulling the air inside and you're leaving it out. Observe your breath. The moment you do that in one snap, सारा ध्यान आपका यहाँ आ जाएगा। थोड़ी देर तक observe your breath, observe your body. उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी को आप रिलैक्स करें, क्योंकि हम पूरे दिन में बहुत स्ट्रेस लेके चलते हैं जो हमें अगेन रियलाइज नहीं होता। इस स्ट्रेस से काफी टेंशन रहती हैं और सबकॉन्शियस माइंड में कंफ्यूजन रहता है, इरिटेशन रहती है। So a very simple way to get rid of all of that and clear your mind is this: sit east facing or lie down straight, observe your breath, relax your body. इसके बाद आप एक एक करके अपने थॉट्स को देखना शुरू करें। जो थॉट्स आपके यूजफुल नहीं है, नेगेटिव हैं, किसी चीज पे आपको परेशानी है, टेंशन है, उसका सोल्यूशन देखें। Why am I disturbed? What is the solution of this thought? Suppose I say I'm disturbed. Oh, I'm disturbed because आज मेरी इस जने से आर्ग्यूमेंट हो गई। चलो ऑब्जर्व, आई एम डिस्टर्ब टुडे, मेरी इस जने से आर्ग्यूमेंट हुई है, मैं इस वजह से डिस्टर्ब हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है? वो तो मुझे ही ढूंढना है सोल्यूशन। सो उसका सोल्यूशन अपने आप को बताएं और इस डिस्टर्बेंस को अपने दिमाग से निकाल दें। इस तरह sort your mind out, sort out every point that is not needed. The natural nature of every soul is peace. जो हमारा एक आत्मिक स्वभाव है वो है शांति और प्रसन्नता। हमें सारे टाइम उस वाइब्रेशन में जीना चाहिए जो कि एक शांति और प्रसन्नता की वाइब्रेशन है। उसके सिवाय अगर कुछ भी और है तो वो हमने बनाया है डिस्टर्ब होके, which we need to get rid of. So getting rid of all these excess, negative, unrequired emotions is actually called meditation. Nothing, no science behind it, nothing else is needed. Now इस प्रक्रिया को करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके बना लिए हैं। कोई मंत्र चांटिंग कर रहा है, कोई एक कैंडल को देख रहा है, कोई अपने चक्रों को ऑब्जर्व कर रहा है। बट जो आपका मेन पॉइंट है वो यही है that you need to create peace within you, harmony in your flow of energy, which is the chakras, और एक synchronicity और sync आपकी बॉडी और थॉट्स में और माइंड में आए। मेडिटेशन का मेन पर्पस एक्चुअल में यही होता है। सो माय अपील टू एवरीवन हियर इज प्लीज ट्राई टू मेडिटेट। आप ये जो मैंने तरीका बताया ये फॉलो करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक सिंपल मेडिटेशन है जो एक योगा गुरु है, हु इज एक्चुअली माय ब्रदर, पूरी फैमिली हमारी स्पिरिचुअल है। तो उन्होंने ऋषिकेश में वो फिलहाल हैं, योगा कंडक्ट कर रहे हैं, काफी कोर्सेज कर रहे हैं योगा के। तो उन्होंने लिटरली गंगा किनारे बैठ के एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन बनाई है। गंगा का पानी की आवाज आप सुन सकते हैं। यू कैन वॉच द लवली रिवर फ्लो बाय। अगर आपको चाहिए तो आप जाके वो मेडिटेशन देखें। जस्ट वॉच इट फॉर फ्यू मिनट्स, प्लग इट इन योर ईयर्स, क्लोज योर आईज and just listen to it. Follow whatever simple instructions he's giving you. So I also have this is the meditation I have on my channel. You're welcome to go check it out. It's under playlist. Just click on meditation by the Ganga. So I have a meditation that you can try. And if not, जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो आप फॉलो करें। बहुत पावरफुल रेमेडी है आपकी लाइफ में, आपके थॉट्स, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, सब कुछ इससे चेंज हो सकती है।
क्योंकि जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस चलता रहता है ना 24 घंटे, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को। अगेन कमिंग बैक टू एस्ट्रोलॉजी, हम एस्ट्रोलॉजी में ये टूल्स हैं कि हम आपके मेंटल एटीट्यूड्स को पढ़ सकें कि कौन जना कब डिप्रेशन में जाएगा, कौन जना ज्यादा टेम्परामेंट अपना खोएगा, किन दिनों में तिथियां होती हैं, जैसे जो मून का जो एक कैलेंडर होता है जिसको तिथि बोलते हैं, द लूनर मूवमेंट्स फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून, अमावस्या पूर्णिमा जो चलता रहता है, उससे हमारा माइंड और हमारा थिंकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मेरे यूट्यूब चैनल पर इस पर भी एक छोटा सा वीडियो अगर आप देखें, इट्स कॉल्ड द मून एंड द माइंड, एंड देयर इज अनदर वन कॉल्ड तिथीज एंड द माइंड। जो मून है वो आपको पता होगा कि जो सी वेव्स होती हैं और जो वाटर एलिमेंट है अर्थ पे, उस पे बहुत पावरफुली इफेक्ट करता है। सो मून के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी तो वाटर है ना, और हमारा ब्रेन इज नथिंग बट केमिकल्स। सो हमारे माइंड और मून का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो हम पत्रिका में देख सकते हैं हाउ अ पर्सन विल बी थिंकिंग। उस थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव लाने के लिए भी ज्योतिष में बहुत सारे टूल्स हैं, और उनमें से एक बहुत पावरफुल टूल जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है मेडिटेशन। सो डू ट्राई टू ब्रिंग मेडिटेशन इन योर लाइफ। जो सिंपल चीज मैंने बताई है आप वो करके भी ट्राई कर सकते हो। नाउ द लास्ट पार्ट which is chanting. So I always give my clients mantras. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो आपको जेमस्टोन्स देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप ये खरीद लो, ये अंगूठी बना लो, ये पेंडेंट बना लो, ये क्रिस्टल ले आओ। अभी आप एक चीज समझो, जब आप एक अंगूठी लाते हो या आपको क्रिस्टल लाते हो, तो वो आपके दिमाग में तो नहीं घुल सकता है। हाउ डज इट इम्पैक्ट यू? उसके जो वाइब्रेशंस होती हैं, उस वाइब्रेशंस का हमारी बॉडी पर और हमारे माइंड पर इम्पैक्ट होता है। But how much impact will it actually have on your mind? They are very powerful. The gemstones do work. But when you start changing the way you think, nothing can be faster than that. आप अपनी थिंकिंग को जो बदलते हो ना, उससे ज्यादा फास्ट और पावरफुल और कोई चीज नहीं हो सकती, कोई जेमस्टोन भी नहीं हो सकता। जेमस्टोन्स के साथ एक और क्रूशियल चीज ये होती है कि जेमस्टोन्स दोबारा से जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। Every planet is an element and every element is connected to the energy of a gemstone. For example, red color या मूंगा जिसको बोलते हैं is connected to the planet Mars. मंगल के लिए पहना जाता है। पर अगर आप वो पहन लेते हो तो मंगल आपको सब कुछ कई बार अच्छा नहीं देना चाहता। Sometimes the planet gives you negativity also. So when you wear that gemstone along with some positive energy, some negative is also coming. Which is why I am personally very careful in prescribing gemstones. मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। शायद 100 पत्रियां में अगर देखती हूँ, 100 पत्रियों में शायद 2 या 3 पत्री कोई मैं जेमस्टोन बताती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव या 100% पॉजिटिव नहीं हो पाता। उसकी बजाय मैं प्रिफर करती हूँ कि आप मंत्र चांटिंग, मेडिटेशन, दान दक्षिणा और सोशल वर्क से जो पॉजिटिव कर्मा है उसको बढ़ाएं। पॉजिटिव कर्मा जब बढ़ेगा तो नेगेटिव कर्मा अपने आप कम होगा और आपकी लाइफ में बैलेंस, चेंजेस और पॉजिटिविटी अपने आप आने लगेगी और चीजें बदलने लगेंगी। So mantra chanting, again, there is a lecture on my YouTube channel that you can check out. The lecture is called Chanting. This can change your life. इतने सारी फॉर्म्स हैं हमारी, क्यों हैं? हर एक फॉर्म जो है, चाहे वो देवी की है, नारायण है, कृष्णा है, शिव है, उसकी एनर्जी अलग है। जब आप शिव जी को देखते हैं, शिव जी इज द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। उनको तामसिक वाइब्रेशन में माना जाता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय। तो आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्यों लाओगे? क्यों लाओगे? आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लाओगे टू डिस्ट्रॉय नेगेटिविटी, टू डिस्ट्रॉय दैट इज नॉट नीडेड। सिमिलरली लक्ष्मी जी हैं, अलग ही फॉर्म है एक देवी का, राइट? और काली है। काली अगेन डिस्ट्रॉयर, लक्ष्मी जी सस्टेनेंस। लक्ष्मी जी आपका ध्यान रखती हैं, आपको अन्न देती हैं, और काली माँ जो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए उसको खत्म करती है। सो हर एक फॉर्म का, हर एक रूप का एक अलग पर्पस है लाइफ में, इसीलिए इतने सारे रूप हैं। एंड देन देयर इज निरंकार, जो कोई भी रूप नहीं है। आप सिर्फ बैठ के एक यूनिवर्सल ध्यान कर सकते हो, एक तेज को ध्यान कर सकते हो। आप कहते हो कि हम किसी रूप को नहीं मानते, वो भी पॉसिबल है। सो इतने सारे ऑप्शंस इसीलिए हैं
कि हम अपनी लाइफ में उस वाइब्रेशन को ला सके जो हमें पसंद है या जिसकी हमें जरूरत है। सो मैं जब पत्रिका देखती हूँ, मैं ये भी देखती हूँ कि किसकी लाइफ में कौन सी वाइब्रेशन लाने की इस समय जरूरत है। अगर आप किसी बहुत मुश्किल डिजीज से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, देन द मोस्ट पावरफुल मंत्र, और इसमें भी आप गूगल कर सकते हो, बहुत क्लियरली इसमें बहुत रिसर्च की गई है कि महामृत्युंजय मंत्र को सुनने और जाप करने से कैंसर के सेल्स कम होने लगे हैं। इसमें साइंटिफिक रिसर्च है, आप ढूंढ सकते हो। सो दैट्स हाउ पावरफुल मंत्रास वर्क, दैट्स हाउ पावरफुल मंत्र चैंटिंग इज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है ये। सो मैं जब रेमेडीज देती हूँ, जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप इस टाइम से इतने बजे इस दिन को ये मंत्र करें, वो सब एक कैलकुलेशन होती है। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट very detailed calculation of vibrations, of elements, of everything that is around. That is how astrology and that is how remedies work. तो उसमें आप चांटिंग करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर कौन सा मंत्र करना चाहिए, मैं पत्रिका देखे बिना तो ऐसे रैंडमली नहीं बता पाऊंगी, बट इफ यू से कि चलो आप मुझे कोई कृष्ण मंत्र दे दो, तो मैं मंत्र दे सकती हूँ। अगर किसी फॉर्म का आपको मंत्र चाहिए तो वो मैं बिना पत्रिका देखे दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं लाइव सेशन आज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज लाइव सेशन में क्या होता है कि अक्सर मैंने देखा लोग यही पूछ रहे होते हैं, हमारी शादी कब होगी, हमें पैसे कब बढ़ेंगे, बेटा कब जॉब लगेगी। एक्चुअल में ज्योतिष का पर्पस ये सब नहीं था। एक्चुअल में ज्योतिष का पर्पस ये था, जो मैं पिछले 1 घंटे से बोल रही हूँ, कि हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन आवर लाइव्स, हाउ टू ग्रो एज बेटर ह्यूमन बीइंग्स। ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। ज्योतिष ये इसलिए बनी थी कि हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर बना सकें और एक अच्छे कर्म करते हुए एक अच्छे रास्ते चल सकें। ज्योतिष का असली कारण ये था। वो तो बाय चांस ऐसा है कि इन सबको पढ़ते पढ़ते हम लाइफ की घटनाओं को भी देख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दोस। सो प्रिडिक्शंस आर ओनली अ साइड इफेक्ट of practicing astrology. Actual thing is to use the guidance to improve our life. Rather than predictions, focus on how to improve your life through astrology. Astrology guidance आप यूज करें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सिर्फ ये सोचने के लिए नहीं कि चलो 6 महीने बाद तो नौकरी बदल ही जाएगी। ऐसे नहीं होता है। हमारी फ्री विल, हमारा एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एस्ट्रोलॉजर्स को ये देखकर पत्रिका देखनी समझनी चाहिए, क्योंकि फ्री विल के बिना चीजें हिलना मुश्किल है। वी हैव टू मेक एफर्ट्स, एंड एज एस्ट्रोलॉजर्स वी हैव टू सी कि हर एक जने की फ्री विल भी कितना एफर्ट वो करेगा। कुछ लोग कम करेंगे, कुछ ज्यादा करेंगे, उस हिसाब से चेंजेस भी कुछ की लाइफ में कम आएंगे, कुछ की में ज्यादा आएंगे। सो मोस्टली मैं आज का सेशन इसीलिए लेना चाहती थी, और मैं जब ये सेशन टेलीकास्ट होगा, मैं लॉग इन करूंगी अपनी एस्ट्रो कन्नू की फेसबुक आईडी से, और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आई विल आंसर all the questions while in the comment section. In case you want to ask me anything over email, you're welcome to email me. जो मैं पत्रिका के सेशंस करती हूँ वो पेड रीडिंग्स होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती हैं। यूट्यूब पर जो मेरे चैनल्स हैं और जो मंथली मैं प्रेडिक्शन देती हूँ वो फ्री हैं, वो आप देख सकते हैं। पर पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं बुकिंग्स के साथ अवेलेबल हूँ। मेरे पास 3 पेमेंट ऑप्शंस हैं। 1 क्वेश्चन रीडिंग 1000 रुपीज, 3 क्वेश्चन रीडिंग 3000 रुपीज, एंड अनलिमिटेड सेशन जिसमें मैं वैदिक रेमेडीज, एडवाइस, और आप जो मर्जी कितना मर्जी पूछ सकते हैं, कोई टाइम का नहीं है हिसाब। इट्स फॉर 5000 रुपीज, और आपका टाइम ऑफ बर्थ ऑफ कोर्स आपको मुझे देना पड़ेगा, एंड उस हिसाब से हम कंसल्टेशन करते हैं। अगर आपको बुकिंग्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाकर सेंड ईमेल ऑप्शन क्लिक करके वहां से ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे astrokannu1@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। रीडिंग्स के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करके आपकी बुकिंग्स ले लूंगी। और भी कोई अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस हैं, यू आर वेलकम टू ईमेल मी। आई विल ट्राई टू आंसर देम, आई ट्राई टू गाइड यू इन व्हाटएवर वे आई कैन। It's been really great to be here and share all the knowledge that I can. मैंने कोशिश करी है कि मैं जितनी इंफॉर्मेशन दे सकूं आपको दूं इस सेशन में। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम लाइव आने की,
ताकि और कोई अगर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या और किसी टॉपिक पे आप जानना चाहें तो नेक्स्ट लाइव सेशन में मैं आके बात कर सकती हूँ। आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहें कि मैं नेक्स्ट टाइम आके बात करूं या कोई सवाल है जो मैं लाइव आके आंसर करूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन और ऑप्शंस या सजेशंस दे दें। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डू दैट। आई विल नॉट कम एंड आंसर क्वेश्चंस, तो आप पत्रिका के बारे में ना पूछें, वो मैं ऐसे कमेंट्स में ये मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। बिफोर एवरी सेशन आई सिट डाउन, आई से अ प्रेयर, आई आस्क एंड सीक गाइडेंस एंड बहुत सीरियसली मैं काम करती हूँ। ऐसे रैंडम कमेंट्स में ये ऐसे होगा ऐसे ऐसे मैं नहीं करती हूँ काम। मैं अफर्मेशंस के साथ भी काम करती हूँ। हाउ डू अफर्मेशंस वर्क? अगेन इट्स अ वेरी पावरफुल टूल टू क्रिएट चेंजेस इन योर लाइफ। अफर्मेशंस कुछ नहीं है, एक सिंपल तरीके के मंत्र ही हैं एक तरह से। जब हम अगर रोज कहते हैं आई एम हैप्पी, आई एम लव्ड, आई एम पावरफुल, एक सिंपल अफर्मेशन है, वो हमारे थॉट प्रोसेस में चलने लगती है वो फीलिंग। उससे हमारा इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं हमारी थॉट प्रोसेस में। जब इमोशनली हम बेटर फील करते हैं तो हम आसपास के लोगों को रिस्पॉन्स बेटर देते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं। उससे हमारे रिलेशनशिप्स चेंज होते हैं। रिलेशनशिप्स चेंज होने के साथ साथ हमारी लाइफ में बहुत सारे और चेंजेस आने लगते हैं। So to tell you quickly, affirmations are very powerful tools. They're similar to mantras. It's like reprogramming your thought process. अपनी अपनी सोच को दोबारा से लिखना is affirmations. So मैं affirmations के साथ भी काम करती हूँ। मैं बहुत बार अपने क्लाइंट्स को affirmation सजेस्ट करती हूँ। मेरी वीडियो पे, मेरे YouTube पे एक और वीडियो है called Creating Meaningful Relationships। अगर आपके पर्सनल लाइफ में या ऑफिशियल लाइफ में या नेबरहुड में या बच्चों के साथ अनबन चल रही है या रिलेशनशिप्स आपको बहुत बर्डन महसूस हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप से कनेक्टेड, आप जाके ये वीडियो देखें। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 20 मिनट के करीब का है। चेक इट आउट, ट्राई टू थिंक, थोड़ा आप देखकर थोड़ा सोचना जो मैं कह रही हूँ, एंड ट्राई टू फॉलो द एडवाइस दैट आई हैव गिवन यू। ट्राइड और टेस्टेड है, आप कोशिश करो, आपकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे, रिलेशनशिप्स इंप्रूव जरूर होंगे। उस वीडियो में जो मैंने रिलेशनशिप से कनेक्टेड एडवाइस दी है वो थोड़ा देखिए, और एक और वीडियो में मैंने सिंपल रेमेडीज दी हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं टू इम्प्रूव प्रॉस्पेरिटी, टू इम्प्रूव मनी, to improve harmony in your life. There's a video that specially talks only about that. उसमें सिंपल 4-5 रेमेडी है जो आप अपने आप कर सकते हो, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ नहीं करना, आप अपने आप फॉलो करो। गारंटीड प्रैक्टिस रेमेडीज हैं, आप करोगे आपके लाइफ में, आपके हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, मनी में चीजें बदलेंगी लाइफ में। पर दिल से करना, खाली करने के लिए फिजिकली मत करना, सोच के समझ के पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जब रेमेडीज करेंगे तो जरूर चेंज आएगा। सो आप 3 वीडियोस के करीब मैंने दिए हैं। फिक्स योर बैड डेज करके है एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट में, एक और है हाउ टू ब्रिंग हार्मनी, हाउ टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड मनी। 2-3 वीडियोस में कुछ टिप्स हैं, आप वो भी देखें और जरूर फॉलो करें। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। So this has been great, and I will be sharing this session on my YouTube channel also later once this telecast is over. तो अगर आप बाद में कभी दोबारा देखना चाहें तो यही लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर भी अवेलेबल होगा बाद में, इस टेलीकास्ट के बाद। So again, thank you so much for spending your time listening to me. आपने इतना टाइम दिया, मेरी बातों को जरूर सोचिएगा। मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा अपने नॉलेज को शेयर करने की। Again, I'm extremely grateful for everyone in this group जिन्होंने ये शॉपिंग कार्निवल रखा है जिसमें हम लोग आके अपनी बात कर सकते हैं, चाहे वो सर्विसेज को देना है या कुछ भी है। I am very grateful for having this chance. I wish everyone all the best. This year has been very very difficult. 2020 मेरे predictions में मैंने ये लिखा था जनवरी में जब मैंने predictions दी थी that this will be a year you will never forget. और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था वैसा ये साल निकला भी। बट अच्छी प्रिडिक्शन ये है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स चीजें धीरे धीरे बदल जाएंगी, अब बेटर टाइम आ रहा है। मंथली प्रिडिक्शन देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू एस्ट्रो कन्नू ऑन यूट्यूब। मैं हर महीने उसमें अपने प्रिडिक्शंस देती हूँ। फेसबुक पे भी एस्ट्रो कन्नू का पेज है जहाँ मैं हर महीने प्रिडिक्शंस देती हूँ। सो डू चेक इट आउट एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।
I hope the coming time is really good for all of you. And trust me, October will be the changing point. धीरे धीरे अब सब बेहतर होने लगेगा. उम्मीद ना छोड़े, अपना ध्यान रखें. All the best. Thank you so much.